गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम ऐसा सैंपल पेपर शुरू कर रहे हैं। सैंपल पेपर हमने स्टार्ट किया है करना बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए, 10th बोर्ड एग्जाम के बच्चों के। और सैंपल पेपर का फर्स्ट पेपर हमने आज लिया है, पेपर 1। फर्स्ट क्वेश्चन इज find k so that the quadratic equation k plus 1 x square minus 2 into k plus 1 into x plus 1 equals to 0 has equal roots. Means, see here, k plus 1 into x square minus 2 into k plus 1 x plus 1 equals to 2. See here, आप जब इसको कंपेयर करोगे बेटा, आप सब जानते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. Therefore, in this question, a is equals to k plus 1, b is equals to minus 2 into k plus 1 and c equals to 1. So, see, question is saying there are two equal roots. Means, nature of the roots में आपने पढ़ा हुआ है कि किस कंडीशन में टू इक्वल रूट्स होते हैं बेटा, जब d की वैल्यू 0 होती है. d का फॉर्मूला है हमारे पास, फाइंड द d, that is discriminant b square minus 4ac, and d is here 0, so it would be minus 2 into k plus 1 whole square minus 4 into k plus 1 into 1. 0 equals to, this is minus 2, so it would be 4, minus 2 square is 4, and k plus 1 whole square minus, this is 4k minus 4. Here we will apply identity a plus b whole square, that is 4k square plus 2k plus 1 minus 4k minus 4. 0 equals to 4k square plus 4 to the 8k plus 4 minus 4k minus 4. This 4 and this 4 can be cancelled, and 1 is plus, 1 is positive, 1 is negative. Now 0 equals to 4k square plus 8k minus 4k is minus plus 8 plus 4k. And finally, we can write 4k square plus 4k equals to 0. Okay? And then we can find out the value of k here, that is 4k is common, it would be k plus 1 equals to 0, and then we can write if 4k equals to 0, then k equals to 0 upon 4, k equals to 0. If k plus 1 equals to 0, then k equals to minus 1. Therefore, there are two values of k. Therefore, k equals to 0 and minus 1. Finish. Next question is question number 4. This is a solid metallic cylinder of radius 3.5 centimeter and height 14 centimeter melted and recast into a number of small solid metallic ball, each of the radius 7 upon 12 centimeter. Find the number of balls
ऑफ नंबर ऑफ बॉल्स सो फॉर्म्ड। यस, समझ में आ गया होगा बेटा। एक मेटेलिक सिलेंडर है जिसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। हमने उसको मेल्ट करके और छोटे छोटे बॉल बनाने हैं जिसका रेडियस 7/12 सेंटीमीटर। तो कितने बॉल बनेंगे उसको मेल्ट करने के बाद? तभी हम सब जानते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स का जो वॉल्यूम होगा वो भी उतना ही होगा, बिकॉज सेम मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू बॉल। तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होता है, ये याद रखना। वेरी इजी। नंबर ऑफ small balls is equals to volume of cylinder upon volume of sphere या वॉल्यूम ऑफ बॉल। जो लिखिए स्फेरिकल होता है वो हम लोग स्फीयर भी लिख सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ बॉल होता है पाई 4/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई को हम कैंसल कर सकते हैं, रेडियस दोनों का अलग अलग है इसलिए हम R1 और R2 करेंगे। R1 and R2, R1 square, so radius is here, radius of cylinder is 3.5 square, that it can be written 3.5 into 3.5, and height is given 14 centimeter upon, this is 4/3 into R2 cube, and R2 is 7/12 into 7/12 into 7/12। ठीक है बेटा। तो हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, देखिए कैसे चेंज करेंगे। कैंसिलेशन चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो 4 3 जा हम लोग कैंसिल कर देते हैं। नाउ 3.5 into 3.5 into 14 divided by 7 into 7 into 7 upon 3 into 3 into 12 into 12। कंफ्यूजन से बचने के लिए हम ऐसा कर देते हैं, बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें भी पॉसिबल था, कैंसिलेशन के बाद हम इसको रेसिप्रोकेट करते हैं। 3.5 into 3.5 into 14 into 3 into 3 into 12 into 12 upon 7 into 7 into 7। कैंसिलेशन 7 2 जा 7 0.5 and this 0.5। तो कितना होगा बेटा वो देख लीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद 0.5 को मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 0.25, 0.25 को मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो होगा 0.5, और 0.5 को 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो होगा 6। तो हमारा जो आंसर आएगा वो है 3 into 3 into 12 into 6। और सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे, देख लीजिए। 3 3 जा 9, 9 6 जा 54, तो 54 into 12 648। तो 648 बॉल्स बनेंगे छोटे वाले। फिनिश। दिस क्वेश्चन इज और ऑफ फर्स्ट। और है दो, फर्स्ट क्वेश्चन में 2 ऑप्शन है तो आप दोनों में कोई एक कर सकते हैं, और है, मगर हम लोग तो प्रैक्टिस पर्पस के लिए कर रहे हैं इसलिए हम दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन इज इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x square plus 3x plus 4 equals to 0 is 2/3, then find the value of p and the root and the other root of the equation। इस क्वेश्चन में बेटा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
3x square plus px plus 4 इक्वल टू 0। इसका एक रूट दिया हुआ है, 2/3 इज 1 रूट ऑफ दिस इक्वेशन। हमने उसका अदर रूट फाइंड करना है और p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ, 3 इंटू 2/3 होल स्क्वायर प्लस p इंटू 2/3 प्लस 4 इक्वल टू 0। 3 इंटू 4/9 प्लस 2p/3 plus 4 equals to 0, and again this can be cancelled, 3 3 just, so this is 4/3 plus 2p/3 plus 4 equals to 0. Now these are the fractions, so by taking LCM we can add 3, this is 4, this is 2p, and this is 4 3 जा 12। कई बच्चों को शायद नहीं पता चले कि ये 12 कैसे आया। अपॉन 1 करेंगे यहाँ, 3 डिवाइडेड बाय 1 वी गेट 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 12। नाउ 4 प्लस 12 इज 16 प्लस 2p इक्वल्स टू 0 इंटू 3, 2p इक्वल्स टू 0 माइनस 16 and p equals to minus 16 divided by 2, and finally p equals to minus 8. We got the value of p here. Now our question is saying find the other value of x. तो कैसे फाइंड करेंगे बेटा, हमने p की वैल्यू इसमें डालना है और एक प्रॉपर इक्वेशन विदाउट p फाइंड कर लेना है। तो देखिए कैसे करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस minus 8x and plus 4 equals to 0, and then we can write here 3x square minus 8x plus 4 equals to 0, and now using middle term split कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो, आप जनरल फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, या और भी जो मेथड, या मिडल टर्म स्प्लिट से कर लेंगे हम लोग। तो हम लोग मिडल टर्म स्प्लिट से कर रहे हैं, हम लोग इसको मिडल टर्म स्प्लिट से सॉल्व कर रहे हैं। 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 12, एंड वी हैव टू गेट द पेयर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12। दिस इज 12 into 1, this is 6 into 2, and this is 4 into 3। आपको उस पेयर को सिलेक्ट करना है जिसको ऐड करने पर 8 आता है। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड पेयर ऑफ फैक्टर्स, 3x स्क्वायर minus 6x minus 2x plus 4 equals to 0. 3x is common, so it would be x minus 2, and minus 2 is common, it would be x minus 2 equals to 0, and finally 3x minus 2 into x minus 2 equals to 0. You know, जब आप दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हो और फाइनल आंसर 0 आता है, इसका मतलब दो ऑप्शंस हैं, आइदर दिस और दिस इज 0 और बोथ ऑफ देम आर 0। तो इसकी वैल्यू 0 हो, इसकी वैल्यू 0 हो, या दोनों की वैल्यू 0 होगी। हम लोग लिखेंगे if 3x minus 2 equals to 0, then x equals to 2/3, जो कि वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था। और if x minus 2 equals to 0, then x equals to 2। so हमने दो आंसर फाइंड करना था बेटा। p की वैल्यू क्या है जो हमने फाइंड आउट किया पहले, -8, एंड अदर वैल्यू ऑफ x और अदर रूट ऑफ x, अदर रूट ऑफ इक्वेशन ऐसा बोल सकते हैं। तो अदर रूट ऑफ इक्वेशन x इक्वल्स टू 2। तो हमारे दो आंसर मिल गए। ओके, दिस इज फिनिश्ड नाउ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। In figure, two tangents RQ and RP are drawn from an equivalent external point R to the circle with center O. If angle
PRQ equals to 120 degree, then prove that OR equals to PR plus RQ. We can take here. First of all, we will make a diagram. Yes, beta. And our question is saying this is R, because from R two tangents are drawn, RP and RQ. So question is, this is 120 degree. Then certainly, so many times I told you, these and these are supplementary angles, so it must be 60 degree. अच्छा, आप देखोगे डायग्राम तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये 60 डिग्री का एंगल है, बट डोंट माइंड, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 60 मानिए और इसको हम 120 मानेंगे, बिकॉज क्वेश्चन कह रहा है ये एंगल बड़ा दिख रहा है एक्चुअली हमारा और ये छोटा दिख रहा है। हमने एक लाइन ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है। दिस इज O. Now this and these are equivalent congruent triangles. These two are congruent triangles. तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमें प्रूव कर देना चाहिए कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल POR एंड ट्रायंगल QOR. In triangle POR and QOR, OP is equals to OQ. Radii of same circle. Next, PR equals to QR. Tangents from same point. Next, OR equals to OR. Common. Therefore, triangle POR is congruent to triangle QOR, and therefore we can say this angle and this angle are equal. So angle POR is equals to angle QOR, and is equals to क्या होगा बेटा, ये 60 था पहले से, अब होगा ये 30, एंड यहां लिखेंगे CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि ये 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है ना बेटा। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, यहाँ यही क्वेश्चन है। हम इसको, हमारा इसको यूटिलाइज करना है और इसको यूटिलाइज करना है, तो इस दोनों से रिलेटेड रेशियो हम चेक करेंगे कौन सा है। दिस इज हाइपोटेनियस एंड दिस इज हाइपोटेनियस, OR इज हाइपोटेनियस एंड दिस इज अपोजिट साइड, दैट इज परपेंडिकुलर आप कह सकते हो, हम लोग परपेंडिकुलर उसको बोलते हैं, because this angle we are utilizing this angle and this is the opposite side of the angle, so it is perpendicular और opposite side बोलते हैं, and ये hypotenuse हो गया। तो उससे रिलेटेड जो है हमारा साइन है, साइन 30। अब हम लोग इसको यूज करेंगे इन ट्रायंगल POR, यहां लिखते हैं
in triangle POR, sin 30 equals to PR upon OR, and that is sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 equals to PR upon OR, and 2PR equals to OR. This is equation 1. Now coming in this triangle, in triangle QOR, in triangle QOR, again sin 30 is equals to, this is opposite upon again hypo, so RQ या QR लिखिए, QR upon OR, and sin 30 की वैल्यू फिर से होगी बेटा 1/2 इक्वल्स टू QR अपॉन OR, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2QR इज इक्वल्स टू OR. ये इक्वेशन 2. दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करेंगे, तो बाय एडिंग बोथ हमने लिखना है, बाय एडिंग बोथ द इक्वेशंस. तो सी हियर कैसे करेंगे, by adding both the equations, टू PR plus 2QR equals to OR plus OR. By adding both the equations, we get this. 2 is common, so can be written PR, 2 into PR plus QR is equals to 2OR. Can be written 2 can be cancelled, and finally PR plus QR is equals to OR. Proof. Okay. Finish. Next question is question number 4. This is a solid metallic cylinder of radius 3.5 centimeter and 14 centimeter melted and recast into a number of small solid metallic ball, each of the radius 7 upon 12 centimeter. Find the number of balls so formed. Yes, समझ में आ गया होगा बेटा. एक मेटेलिक सिलेंडर है जिसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है. हमने उसको मेल्ट करके और छोटे छोटे बॉल बनाने हैं जिसका रेडियस 7/12 सेंटीमीटर. तो कितने बॉल बनेंगे उसको मेल्ट करने के बाद? तभी हम सब जानते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स का जो वॉल्यूम होगा वो भी उतना ही होगा, बिकॉज सेम मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू बॉल. तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होता है, ये याद रखना. वेरी इजी. नंबर ऑफ small balls is equals to volume of cylinder upon volume of sphere या वॉल्यूम ऑफ बॉल. जो लिखिए स्फेरिकल होता है वो हम लोग स्फीयर भी लिख सकते हैं. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है बेटा πr²h, और वॉल्यूम ऑफ बॉल होता है पाई 4/3 πr³. पाई से पाई को हम कैंसल कर सकते हैं. रेडियस दोनों का अलग अलग है, इसलिए हम R1 और R2 करेंगे. R1 and R2. R1 square, so radius is here. A radius of cylinder is 3.5 square, that it can be written 3.5 into 3.5
and height is given 14 centimeter upon, this is 4/3 into R2 cube, and R2 is 7/12 into 7/12 into 7/12। ठीक है बेटा, तो हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। देखिए कैसे चेंज करेंगे, कैंसिलेशन चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो 4 3 जा हम लोग कैंसिल कर देते हैं। नाउ 3.5 into 3.5 into 14 divided by 7 into 7 into 7 upon 3 into 3 into 12 into 12। कंफ्यूजन से बचने के लिए हम ऐसा कर देते हैं, बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें भी पॉसिबल था, कैंसिलेशन के बाद हम इसको रेसिप्रोकेट करते हैं। 3.5 into 3.5 into 14 into 3 into 3 into 12 into 12 upon 7 into 7 into 7। कैंसिलेशन 7 2 जा 7 0.5 and this 0.5। तो कितना होगा बेटा वो देख लीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद 0.5 को मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 0.25, 0.25 को मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो होगा 0.5, और 0.5 को 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो होगा 6। तो हमारा जो आंसर आएगा वो है 3 into 3 into 12 into 6। और सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे, देख लीजिए 3 3 जा 9, 9 6 जा 54, तो 54 into 12 648। तो 648 बॉल्स बनेंगे छोटे वाले। फिनिश। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। यहां हमें मीन फाइंड करना है बेटा, तो इसके लिए हमें एक टेबल बनाना होगा पहले। this one, this is class frequency यहां लिखेंगे xi दैट इज मीड वैल्यू, और यहां लिखेंगे fi xi या xi fi भी आप लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, सेम टेबल को हमें कॉपी करना है इन दोनों के लिए। दिस इज 0.5 एंड 5.5, 5.5 to 10.5, 10.5 to 15.5, 15.5 to 20.5, 20.5 to 25.5. This is frequency 13, 16, 22, 18, 11. Here xi means how you will get xi after adding this and this, you will divided by 2, you will get xi. 0.5 plus 5.5 each, actually 6 divided by 2 is 3. Same thing is here, 5 plus 10 15 plus 1 16 divided by 2 is 8. 10.5 20 15.5 when added we get 26 divided by 2, that is 13. और इस तरह से हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं बेटा, 3 plus 5 8, 8 plus 5 13, 13 plus 5 18,
18 + 5 23 फिनिश। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। यस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें लिखना है। 39 13 3 जा 39, 16 8 जा 128, 22 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे। And this is this. सबको ऐड करेंगे बेटा यहां पे भी फ्रीक्वेंसी को। $80 and this one after adding this one, इसको हम बोलते हैं सिग्मा fi and this is सिग्मा xi fi या fi xi। अब जो हम मीन फाइंड करेंगे, मीन क्या होगा वो देखिए, मीन इक्वल्स टू, मीन को हम लोग एक्स बार से भी डिनोट करते हैं बेटा, याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन में आता है फाइंड एक्स बार, और हमने देखा है कई बार बच्चे पता ही नहीं चलता है एक्स बार क्या है, क्या फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में कहा गया है। तो एक्स बार मीन्स मीन इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला है सिग्मा xi fi अपॉन सिग्मा fi। यहां हमने लिखना है 1030 अपॉन 80, 0 0 cut and after dividing you will get the final answer. This one 12.875 is the mean. Finish. Now question number 6. This is a table given in the question, number of plants and number of houses. हमने यहाँ मीन फाइंड करना। अगले table is like this. Number of plants, number of houses. Zero to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14. हम लोग इसमें वर्टिकल टेबल भी बना सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रीक्वेंसी इज, दिस इज एक्चुअली फ्रीक्वेंसी 1 2 1 5
6 to 3. This is xi and this is fi xi. Xi, this plus this divided by 2. 0 plus 2 divided by 2 is 1. 2 plus 4 that is 6 divided by 2 is 3. Here 4 plus 6 divided by 2 is 5. And this is 7. This is 9. This is 11. And this is 13. And you will multiply this and this. 1 into 1 is 1. 2 into 3 is 6. 1 into 5 is 5. 5 into 7 is 12. 5 into 7 is 35. 6 into 9 is 54. 2 into 11 is 22. And this is 39. Now we have to find out the sum of this. Here this plus this plus this plus this all. This would be 162. And sum of this number of houses this is 20. Okay beta, this is actually sigma fi and this is actually sigma fi xi. Formula is to find the mean. Mean equals to, आपको पता है बेटा, इसको x बार से भी हम डिनोट करते हैं, that is sigma xi fi upon sigma f, and that is 162 divided by 20. और डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 8 point. This is answer. So question is asking mean number of plants equals to 8 point. Finish. Next question is 6th of this sample paper. और मीन्स अभी हमने 6 तो किया था इसके पहले, लेकिन इसमें और है, और मैंने बोला था कि हम लोग तो प्रैक्टिस पर्पज से कर रहे हैं, एग्जाम तो है नहीं, तो इस कंडीशन में हम सारे क्वेश्चन करेंगे, और भी होगा तो सो हियर consider the following frequency distribution of 60 students of class. Consider the following frequency distribution of 60 students of a class. Table दिया हुआ है बेटा. What is the upper limit of the median class in the given data? Table क्वेश्चन में आप देख भी रहे होंगे, लेकिन हम अभी वर्टिकल टेबल बनाएंगे. पिछले क्वेश्चन में हमने हॉरिजॉन्टल फॉर्म ही रखा था, आपने इसको भी सीखना है, इसको भी सीखना है. See, this is height in centimeter. And number of students. And here CF. CF होता है बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ये F है और ये CF है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो this one is 150, 155. This one is 155,
to 160. This is 160 to 165. This is 165 to 170. This is 170 to 175. This one is 175 to 180. Yes. And this is frequency 15, 13, 8, 9, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 150 to 150. Yes. 150 to 155. Yes. See here, beta. This is 15, 13, 10, 8, 9 and 5. ये हाइट दिया हुआ है किसी भी क्लास के जो बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, ये टोटल बच्चे होंगे मेरे एग्जाम में, टोटल कीजिए। सिक्सटी स्टूडेंट्स का ये ऑब्जर्वेशन है, सर्वे किया गया और इसमें जो बच्चे इस हाइट के हैं उनका एक ग्रुप डेटा बनाया गया यूजिंग क्लास इंटरवल। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम लोग पहले इसको लिखें 15, then this plus this is 28, then this plus this is 38, then this 46, then this one 55 and this is 60. तो हमने फाइंड करना है मीडियन क्लास कौन सा। इस डेटा को, ये टेबल जो हमें मिला उसमें मीडियन क्लास कौन सा, मीडियन क्लास है बेटा। मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हाफ करें, मतलब n/2 इक्वल्स टू 60/2, दैट मींस 1, and just more than 30, just more than half of the total age. This is 30 and just more than 30 is 38. So in cumulative frequency column we are getting just more than 30 is 38. It means this class is the median class. This class is the median class. So you will write here just more than 30 in CF column is 38. Therefore 160 to 165 is the class interval of median class. और आपका क्वेश्चन है बेटा अपर लिमिट बताने का, तो अपर लिमिट इसमें क्या है 165। अगर लोअर लिमिट बोलना होता तो आप इसको लिखते। Therefore upper limit of this class is 165. Finished. Okay. Next question is, if the ratio of the sum of the first n terms of two APs is 7n plus 1 is to 4n plus 27, find the ratio of their nth term. See beta, means Sn upon Sn। हमने क्या किया है, एक एपी का
जो सम है उसको कैपिटल एस से डिनोट किया है और दूसरे को स्मॉल एस से डिनोट। चलो नहीं हुआ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। कैपिटल एस और स्मॉल एस हमने लिया है बेटा, एंड दिस इज गिवन 7n plus 1 upon 4n plus 27. See now, you know the formula, n by 2 into 2a, अब इसको हम लोग कैपिटल A लेंगे, प्लस n माइनस 1 इंटू d कैपिटल अपॉन n by 2 2a plus n minus 1 into a small d यूटिलाइज कर इक्वल्स टू 7n plus 1 upon 4n plus 27। जो हमने स्टार्ट किया है क्वेश्चन में जो गिवन है उसी को स्टार्ट यूज किया है और उसी से हम आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला है Sn equals to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, उसी को हमने यूटिलाइज किया है। n by 2 can be cancelled. Now 2a plus n minus 1 into d upon 2a plus n minus 1 into d, और इसको हम लोग डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 2 से कर देंगे। 2 अपॉन 2 से डिवाइड करना, this is equal to 7n plus 1 upon 4n plus 27। सी बेटा, नाउ जब आप 2 से इस पूरे को डिवाइड करोगे तो ये 2 कैंसल हो जाएगा। यहां मैं जरा दिखा भी देता हूं, 2a plus n minus 1 into d divided by 2, that is equals to 2a upon 2 plus n minus 1 upon 2 into d। तो ये 2 से ये 2 कट हो जाएगा, ये बनेगा a plus n minus 1 अपॉन 2 into d, ऐसा बनेगा। और यहां भी ऐसा ही होगा। तो हम लोग इसकी जगह अब यहां लिख देंगे a plus n minus 1 अपॉन 2 into d अपॉन a plus n minus 1 upon 2 into d। Now this is 7n plus 1 upon 4n plus 27। और हमारा क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि हमें mth टर्म चाहिए, mth टर्म का रेशियो। mth टर्म लाने के लिए क्या होता है बेटा, पता है आपको, a plus m minus 1 into d। तो हमें एक्चुअल में इस फॉर्म में इसको लाना। अगर हम लोग n minus 1 upon 2 की जगह m minus 1 को यूटिलाइज कर रहे, n minus 1 upon 2 की जगह m minus 1 को यूटिलाइज कर रहे, तो हमारा m टर्म का रेशियो मिल जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, n minus 1 upon 2 की जगह m minus 1 डाल देंगे और n की वैल्यू क्या होगी वो देख लीजिए। अब आप n minus 1 इक्वल्स टू 2 into m minus 1 and this would be equals to n minus 1 equals to 2m minus 2 and then n equals to 2m minus 2 plus 1 and that is 2m minus 1. At the place of n we have to write 2m minus 1. So here n minus 1 upon 2 की जगह हमने डालना है m minus 1, वैल्यू हम पुटअप कर रहे हैं a plus n minus 1 upon 2 की जगह m minus 1 into d upon a plus m minus 1 into d, and that is 7 into n की जगह हमने डालना है 2m minus 1, so 2m minus 1 plus 1 upon 4 into 2m minus 1 plus 27। और अब यहां हम लिख सकते हैं बेटा
AM upon AM is equals to this one 7 to the 14, 14m minus 7 plus 1 upon 4 to the 8m minus 4 plus 27. Okay, one more step we have to do. थोड़ा सा और करना है. See again, AM upon AM is equals to 14m minus 6 upon 8m minus 4 है यहाँ plus 27. तो 8m is as it is and minus 4 plus 27 is plus 23. This is answer. Finish.